Pooja Yangaldas and I'm on the camera. Today's date is 6th of May 2019. I am interviewing Daulat Behrani for the first time. The interview is taking place at Ulhasnagar, Mumbai, Maharashtra, India, and is being conducted on behalf of the 1947 Partition Archive. Sir, what is your full name? My name is Daulat Waliram Behrani. Okay, sir. Was this your name at birth? Your maiden name? That was the same. Yes. Um, did you have any nicknames? With no, only sometime my mama, she asked me Dulli like that in my childhood. Okay. But when I grown up, my name is Daulat. Okay, sir. Sir, what language are you comfortable in with the with the interview? Hindi and sometimes English and Hindi is a popular language for me. Okay, okay, sir. Sir, what was your father's name? Waliram Hemandas Behrani. Okay. And what is your mother's name? Kimyavanti. Father's name also is one Chetan Das Chattani. Okay, okay. What was your place of birth? Sakhar Sindh. Okay. Now it is in Pakistan. And your birth date? 21 January 1942. Okay, sir. So, can you tell us a bit about your family history? How far back does your family history on your father's side go? Like, how many forefathers do you remember, and what they did, and you know, I something remember about. only my grandfather's name. Yes. Other name I don't know. Okay. What did he do? They were in the construction line. The municipal contractor they were taking. Okay. And in village they were having their own property also. I had been to that village also where my grandfather born, where my grandmom was living. I had been there. There were not any this tap facilities. We have to pull the water from well. That much I know in my childhood. Your father was in the construction business too. Yes. Okay. Okay, sir. So, can you tell us what is the origin of your last name, your surname? What is the meaning of it, and how was it derived? This is a Behrani, means some our ancestors, my grandfather's grandfather, they may be in this name Behrumal. This Behrumal became Behrani. Mostly all the surname he put Ni because of name is only we are not Chattani, Chattomal. Then it became Chattani like that. Okay, sir. So, can you remember any special tales or stories that your father told you that still remains with you? You know that inspires you to be what you are today. My father, he was actually doing exercise and this kabaddi and all wrestling like this. And I inspired from him. And when we came here in from that Sindh, I say again Sindh, I don't say Pakistan. When we partitioned, it was a Akhand Bharat. It was a full India. But due to our negligence, we have divided. Never, the house cannot be divided in two. Because anybody who want to leave this house, he can leave, go and anywhere. But we have made a partition of that house. And that became a Pakistan, and that's India. And we came here. When I came here, I seen one RSS, and I joined RSS also in India. They were doing all kabaddis and all Suprabhatam and all these things.
I got a good culture from RSS people. Okay. Okay, sir. So, do you remember anything from your mother's family? There, how many people and what did they do? My mother is having 3 brothers, and all the I think one is now here, and all 2 brothers left this world. And my Nana ji, he was in Lahore in the railway department. He was working there in Lahore, and I had been to in my childhood to Lahore also with my mother. Then we have come in Sakar. They came in Sakar, and we are already living in Sakar. So, what was your mother's maiden name? I think her name was Kimyavanti, and we have not changed her name. Oh. Sir, her surname from her Her mother's surname side. Chattani. Sir, anything that you remember of your mother? How was she? And your relationship with your mother? She was a very kind, very kind. I remember that one occasion. I'm not taking this mirchi, you can say. In Sindhi we say mirchi, that I don't like because of my mother. She always gave me pika khana without mirchi. Uh, her friends told her, don't give him such habits. You are. She was putting kacha mirchi. That lal mirchi, it may spoil your body, and but she was keeping a food for me without mirchi, and I used to take that food, and she was putting separate mirchi for her food because she liked that mirchi. That I remember that mother can do only, other cannot do it like that. Okay, sir. So, where did your parents grow up? Where were they raised? Mom was raised in Lahore. No, uh, sometime in Lahore, but from Lahore they migrated to Sakar because they were Sindhi, but due to railway department, their transfer is there. Then my Nana was transferred to Lahore. Okay, sir. Sir, you can shift to Hindi and Ah, yes, continue. okay. We, so, um, sir, how many people lived in your house when you were living in your Shakar house? That was a joint family. My uncle was there, and my father was there, and uncle also. वो कौन सा उनका नाम मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, संतुमल नाम था उनका। वो बेचारे जल्दी एक्सपायर हो गए, वहाँ सिंध में ही एक्सपायर हो गए। और जो गोदूमल थे वो हमारे साथ इधर ही आए, लेकिन ही वॉज नॉट मैरिड एंड टिल हिज लास्ट ब्रीथ ही वॉज अलोन एंड ही वॉज लिविंग विथ अस। एंड प्रीवियसली जॉइंट फैमिली वॉज वेरी फेमिलर, और इंडिया वॉज ऑल्सो फुल फेमिलर विथ जॉइंट फैमिलीज। तो हमारा जॉइंट फैमिली अच्छा चला और हम लोग इधर आ गए, और अच्छी तरह से हम लोगों ने अपना जीवन जॉइंट फैमिली में ही गुजारा। और सिंध में मोस्टली मेरे चाचा जी मुझे घुमाने के लिए जब लेके जाते थे, तो आपको याद होगा कि आपने कहीं इंटरव्यू में लिया होगा, एक साधु बेला था सक्खर में। वो साधु बेला एक ऐसा आश्रम था जहाँ हम लोग जाते थे और घूम के भी आते थे। वो नदी के बीच में था। इट वॉज अ वन आइलैंड। वो आइलैंड में हम लोग नाव के साथ जाते थे, और नाव का चार्जेस बहुत बहुत लोएस्ट रहता था। इट वॉज नॉट एक्सपेंसिव। घूम के भी आते थे, और वहाँ से हम लोग अपना भजन होता था वहाँ, वो भी सुनते थे और वापस प्रसाद लेकर के आते थे। तो आपके कितने भाई बहन थे तब? हमारा जो बर्थ हुआ केवल मेरा उधर हुआ, बाकी शायद मेरी एक बहन, उसका भी वहाँ हुआ, लेकिन उसके बाद हम लोग सब बाकी मेरी और बहनें इधर ही उनका जन्म हुआ। तो मेरे को 3 बहनें हैं, एक भाई और मैं। अच्छा अच्छा।
मैं जैसे स्कूल में पढ़ता था तो मुझे इससे अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन मुझे मम्मी तैयार करके ज़रूर स्कूल भेजती होगी। तो कभी कोई लेके जाता था, कभी कोई लेके जाता था, क्योंकि मोस्टली जेंट्स लोग तो घर से बाहर निकलते ही थे, तो उनके किसी न किसी के साथ मैं स्कूल पहुंच जाता था और दोपहर को स्कूल से वापस आ जाता था मैं। और उन दिनों में इतने बड़े बड़े नोटबुक्स नहीं हुआ करते थे, बड़े बड़े बुक्स नहीं हुआ करते थे, और छोटे और वहाँ मैंने शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड ही पढ़ा। उसके बाद मैं इधर आ गया, इधर ही पूरा पढ़ाई मेरा बाकी सब इधर ही हुआ। अच्छा सर, तो स्कूल के बारे में बता सकते हो आप कुछ, कि जैसे स्कूल कितना बड़ा था, गर्ल्स बॉयज़ अलग अलग होते थे, टीचर्स? मुझे ऐसे याद आ रहा है कि स्कूल बड़ा ही था और उन दिनों में कोई एजुकेशन नहीं था, लड़के लड़कियां अलग ही पढ़ते थे। लेकिन मैं बहुत छोटा ही था, फर्स्ट स्टैंडर्ड मीन्स ओनली यू कैन से 6 ईयर, तो 6 साल के बच्चे को इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे मेरी गलियां, मेरा घर अच्छी तरह से याद है। हम लोग का एक घर में कमरा था जो टेरेस पर था, तो उसको हम लोग ओताक बोलते थे, मीन्स वेयर पीपल विल रिमेन साइलेंट एंड डू देयर जॉब लाइक दैट एंड सम मीटिंग आल्सो। कोई आदमी आया तो चलो ओताक में बैठे हैं, वहाँ जा कर के उनसे मिलो, तो वहाँ शोरगुल नहीं रहेगा, तो उसके लिए मीटिंग्स ओताक में ही होती थी। और सर कौन से लैंग्वेजेस में पढ़ाई होती थी? वहाँ ओनली सिंधी लैंग्वेज था पढ़ाई, ओनली सर? ओनली सिंधी लैंग्वेज था। और कुछ बहुत से बड़े स्टैंडर्ड में से आफ्टर 5th हिंदी का वहाँ बहुत अच्छा चलन था, इसीलिए हिंदी अच्छी बोल पाते हैं और हिंदी सीखे भी बहुत लोग। टीचर्स, आपको याद है कि टीचर्स कौन थे? सिंधी थे या मुस्लिम थे या फिर? मिक्स थे, मुस्लिम भी थे। सर आपको कोई अपने डिस्क्राइब कर सकते हो, आप कोई सॉन्ग्स है, पोएम्स, पोइट्री, स्टोरीज जो आपके कल्चर से रिलेटेड है, जो आप अपने जो सिंध में सुना होगा आपने या फिर हाँ, देखा होगा लोग गाते हुए, तो ऐसा कुछ है जो आप मतलब हमें बताना चाहेंगे? ऐसे तो मेरे पिताजी एक गाना गुनगुनाते थे, वो हमारे घर में मोस्टली सभी को शायद याद आ गया, कंठस्थ हो गया। वो गाना था ऐसा, दिने सूरन जी मूंखे लोली अम्मा, दिने सूरन जी मूंखे लोली अम्मा, पीत कान ॿुधाए का ॿोली अम्मा, दिने सूरन जी, तुंहिंजो सुर त मिठो ऐं सदोरो, पर मुंहिंजो नसीबु निंदोरो, ॾिठो सभु कंहिं हो त हिंदोरो, ॾिठो सभु कंहिं हो त हिंदोरो, मुंहिंजे लाइ झली है का झोली अम्मा, ॾिनई सूरन जी। इट्स अ वेरी लॉन्ग पोएम बट आई रिमेंबर फुल। Sir, can you tell me what the meaning is? His boy is asking her mother that you have given me लोली, होता है ना बच्चे को लेकर के हम सुलाते हैं, that लोली you have given me of only sorrows, ऐसा करके उसमें बच्चा बोलता है कि तेरा स्वर जो था वो तो बहुत बढ़िया था, अच्छा था, लेकिन मेरे को तो बहुत ही तकलीफ़ हुआ लाइफ में, और जो झूले में आप झुलाई थी वो तो सभी ने देखा, लेकिन मेरे लिए वो झूला जो था वो दुखों से भरा हुआ ही था, ऐसा करके उसका मीनिंग है। आगे तो बहुत है कुछ। अच्छा ठीक है अंकल, ऐसे कोई स्टोरीज? ठीक है अंकल, ओके। तो आपको याद है आपके दोस्त थे वहाँ पे उस वक्त? शायद इतने दोस्त नहीं थे, लेकिन रिलेशन में ही सब दोस्त थे मेरे। तो ऐसे कोई मुस्लिम दोस्त थे बच्चे के जैसे स्कूल में साथ में पढ़ते हो या आसपास में रहते हो? नहीं, कुछ ऐसा याद नहीं है मेरे को। तो सर आपके आसपास में सब रहने वाले बाजू में बहुत से मुस्लिम थे, और मुझे अच्छी तरह से याद है जब पार्टीशन हुआ एट दैट टाइम हमारे को मुस्लिम लोगों ने अच्छा साथ दिया था, जो हमारे ओरिजिनल वहाँ के मुस्लिम थे,
उन्होंने कोई तकलीफ़ नहीं लिया। रादर हम लोग जब कराची आए तो वो लोग हमारे को कराची में छोड़ने के लिए आए थे, यानी, और रो करके हम लोग एक दूसरे से जुदा हुए थे। आई रिमेंबर दैट सिचुएशन, वाई दैट जो कड़वाहट अभी आ गई है हिंदू मुसलमान की, वो पहले नहीं थी इतनी। और वो भी इधर से जो लीडर लोग हैं ना, जैसे जना थे या कोई थे जो लीडरों ने ये फैलाई होगी, जिनको ये राज्य चाहिए था, शायद उन्होंने ये फैलाई, नहीं तो अदरवाइज़ वो मुसलमान तो हमारे साथ साथ में रहते थे। सर तो अब जो फेस्टिवल्स वगैरह आप लोग मनाते थे वो सब साथ में मनाते थे, मुस्लिम लोगों का कैसे इन्वॉल्वमेंट होता था? मोस्टली वो सब लोग साथ आते आते जाते थे एक दूसरे को। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे बाजू में एक मुस्लिम घर था, तो खाना पीना भी ट्रांसफ़र होता था एक दूसरे के साथ। सर तो साधु बेला के अलावा और कौन से वर्शिप प्लेसेस पे आप लोग जाते थे? मंदिर वगैरह का? मंदिर मंदिर थे, शिवालय भी थे, लेकिन मोस्टली फेमस जो था वो साधु बेला था। वहाँ ही वो एक, यानी एक करने का लिए घूमने का प्लेस भी था एक, क्यों नदी के उस पार जाना पड़ता था, और वो एक आइलैंड था, तो बहुत रमणीक था और आदमी को खुशी होती थी। और मुझे तो हरदम जैसे ऐसे नहीं अभी बोलते हैं अभी चलो विवाना माल, तो हमारे लिए तो उन दिनों में वही एक प्लेस था जो हम अपने पिता माता को बोलते थे चलो साधु वाला लेकर के चलो। अंकल तो छुट्टियों पे और क्या क्या करते थे? मतलब अगर आपकी स्कूल की छुट्टी हो गई तो आप लोग कहीं और कहीं घूमने चले गए, ऐसा कुछ याद है आपको? नानाल में चले जाते थे, बाकी तो मुझे और कुछ याद नहीं है। नानी के घर में जाना होता था, और पिताजी की बहनें भी वहीं रहती थी सक्कर में, तो कभी बुआ के घर में चले गए। अच्छा अंकल, आपको ये याद है क्या कि कोई किसी ने बताया होगा बाद में कि थिएटर्स वगैरह थे उस हाँ, टाइम पे? थिएटर थे। हाँ, मोस्टली उन उन दिनों में ब्लैक वाइट पिक्चर थे, और अच्छी पिक्चरें वहाँ चलती थी। आपको याद है क्या कि सक्कर में कौन सी जगह पे स्पेसिफिकली आप लोग रहते थे? कोई टाउन या फिर कोई? नहीं, इट वॉज सक्खर तो पूरा टाउन ही था, लेकिन निमजी चाड़ी करके बोलते थे एरिया को, वो एरिया में हम लोग रहते थे। तो वहाँ पे अंकल इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो सब था उस इलेक्ट्रिसिटी वक्त? था। था। हाँ, लाइट्स फैंस लाइट, थे? हाँ, थे, लेकिन जो विलेजेस थे वहाँ नहीं था लाइट, वहाँ मोस्टली केरोसिन का लैंप ही चलता था। आपको कोई सीजनल या रीजनल फेस्टिवल्स याद है? कौन से टाइप के त्योहार मनाए जाते थे और किस तरह मनाए जाते थे? अभी से कितना अलग है वो? एक तो लाल लोई जो है ना मनाते थे बहुत, और इट वॉज अ वेरी इन लार्ज स्केल, और सभी पड़ोस के लोग इकट्ठा होते थे, हर एक अपने अपने घरों से लकड़ी लेके आता था, और हम लोग मिल कर के उसको अग्नि को परिक्रमा देने के बाद प्रसाद बांटते थे और आते थे, और पूरा घर उसमें इन्वॉल्व होता था। अभी मैं देखता हूँ कि घर में 4 आदमी गए 2 आदमी नहीं जाते थे, ऐसे चलता था, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, सब बच्चे बड़े सब लोग जाते थे। लाल लोई का फेस्टिवल ही याद है, बाकी होली तो आपस में ही करते थे। और कभी हमारे याद में ऐसा नहीं है कि उन मुसलमानों के साथ होली खेलते हुए कभी झगड़ा हुआ हो, ऐसा वहाँ नहीं हुआ था। मुस्लिम भी जगह हाँ, होली खेलते थे? बच्चे लोग के साथ खेलते थे, बड़े लोग नहीं, हाँ। लेकिन बच्चे लोग को रंग डालने का शौक़ रहता था, लेकिन बड़े लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं था इसमें। और इतना है कि खाना पीना भी हम लोग एक दूसरे को, उनके जो ईद बीद आती थी तो वो लोग हमारे को सेवियाँ भेजते थे, वो हम खाते थे। हमारा भी जो त्यौहार आता था, मोस्टली हमारे यहाँ सप्तमी का दिन आता है, जिसमें हम लोग एक दिन पहले खाना बनाते हैं और नेक्स्ट डे को हम लोग खाते हैं। तो वो जो पकवान रहते थे वो उनको भी पसंद आते थे, और उनको हम खिलाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं हर साल पंढरपुर जाता हूँ इधर, तो पंढरपुर में भी मैं इधर से बना हुआ वही खाना लेके जाता हूँ जो हम लोग अपना पहले बनाते थे उन दिनों में।
वो खाना जो है मेरे कितने दोस्तों को अच्छा लगता है और वो बार बार बोलते हैं वो नहीं लाया क्या ऐसा। हम लोग बेसनी बोलते थे, वो बेसनी उनको बहुत अच्छी लगती थी। और लोला था, वो भी बहुत अच्छा लगता था। और वो बहुत प्यारा खाना बनता था। शायद मेरे माता जी का हाथ ऐसा था, बहुत अच्छा बनता। और मेरी मिसेस भी आजकल बहुत अच्छा बनाती है चीज़ें। और इनकी तो कोकी अभी तक अमेरिका जाती है। जब मेरे लड़की जाती है ना अमेरिका वापस, वो आती है साल में, हर 2 साल में इधर। अभी शायद अगस्त महीने में आएगी, तो मोस्टली वही खाना लेके जाएंगे। उनको प्लेन का खाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, क्या ठीक है। तो आपको याद है क्या, कैसे आप किस तरह आप स्कूल जाते थे? मतलब कौन से ट्रैवलिंग रूट, ये गाड़ी होती थी, बस होता था, या ऐसे फिर हमारे कौन पास से व्हीकल? हमारे पास ओन बग्गी था, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं ना। हमारे पास घर में खुद बग्गी था, लेकिन हम लोग स्कूल में पैदल जाते थे ऐसे। और मुझे ऐसा बचपन याद है कि आई डोंट लाइक टू गो टू स्कूल, कि ज़बरदस्ती मुझे लाया जाता था। इट फर्स्ट स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। लेकिन बाद में पढ़ते पढ़ते 6 महीने के बाद एडजस्ट हो जाता है आदमी, तो मैं एडजस्ट हो गया था। तो और क्या क्या गाड़ी या क्या था वहाँ पे, जो मतलब जिससे लोग आना जाना करते थे? जैसे शक्कर के अगर किसी को बाहर जाना हो तो फिर क्या मोस्टली लेंगे? बाहर जाने के लिए मोस्टली घोड़ा गाड़ी था। हाँ, बाकी ये कारें हमारे इतनी नहीं चलती थी। बस थे? बस 1-2 बस, ज़्यादा नहीं। और बाजू में रोहिड़ी एक शहर है, वहाँ भी हमारे आदमी लोग आते जाते थे। तो अंकल वहाँ तब कैसा गाना, कौन से गाने सुना करते थे तब लोग, और किसको सुनते थे मोस्टली? उन दिनों में लता मंगेशकर इतना फॉर्म में नहीं आई थी। उन दिनों में नूर जहाँ के गाने अच्छे चलते थे। शी वॉज हिंदी गानों में एकदम फेमस थी वो। मोस्टली उसके गाने थे। और सुरैया वो भी गाने गाती थी, उसके गाने भी चलते थे। और पिक्चरें तो ब्लैक एंड वाइट थे। और किस पे सुनते थे गाने अंकल? बड़ा रिकॉर्डर रहता था और उस पर सुनते थे। और ऐसा मुझे ऐसा याद है कि वो ग्रामाफोन था, वो ग्रामाफोन को इतना बड़ा बड़ा वो रहता था और नीडल हम डाल करके मुझे भी चलाने को आ गया था। शायद लड़के लोग ज़्यादा होशियार होते हैं, तो मैं भी सीख गया था नीडल चेंज करना, लगाना। ठीक है अंकल। आपको कुछ याद है, क्योंकि आप छोटे थे, तो कोई खिलौने वगैरह याद है जो वहीं वहीं पे बनते थे, या फिर वहाँ के आपको याद हो कि आप यहाँ लेकर आए थे कुछ? मुझे तो ऐसा याद नहीं, लेकिन खिलौने का मुझे इतना शौक़ नहीं था। मुझे याद है कि मैं बुआ के घर गया था, तो वहाँ एक खिलौना था, वो मैंने हाथ में ले लिया। तो उसके बाद मैं दे नहीं रहा हूँ उनको, मैं लेके ही जाऊँगा। तो मेरी जो कज़न सिस्टर है वो बोल रही है मेरे को चाहिए, वापस चाहिए, इसे वापस लो। तो मैं कैसे भी वहाँ से भाग करके लेकर के आया, इतना याद है मुझे। अच्छा। आपको याद है कि क्या खेलते थे अपने दोस्तों के साथ आप? वो एक ऐसा लाइन निकाल करके, वो वो क्या बोलते हैं उसको, एक ठिकरी बोलते थे हम लोग। वो फेंक करके उसमें ऐसा जम मारना, फिर उठाना, ऐसा खेल होता था। अंकल, आपको अपना घर याद होगा ना, तो घर के बारे में बताइए ना कि कितने रूम्स थे और कितना बड़ा घर था, वरांडा वरांडा वगैरह? वरांडा था, 4-5 रूम थे। और बिल्डिंग लाइन में होने की वजह से जो नीचे वाला एक था ना, वो हमारा एक गोडाउन था जिसमें सब सामान रहते थे, पावड़े, टिकाऊ, या कभी सीमेंट वीमेंट ऐसा वो रहता था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं बाहर बैठता था, तो ऐसा एक बेंच के माफक बना हुआ था, उस बेंच पर मैं बैठा करता था। और वहाँ मेरे को, वहाँ एक सिंधी में वो दाल मूंग रहते हैं, दाल मूंग, तो मेरे चाचा जी दाल मूंग लेके आते थे। और एक फीका दाल होता था, पीला दाल, वो मुझे मुझे खिलाते थे वहाँ बैठ कर के। इतना मुझे याद है। और बाकी सब कमरे जो है वो ऊपर थे। कितने कमरे थे अंकल? 3 कमरे नीचे थे और
एक कमरा जो एकदम लास्ट में था हमारा। अच्छा, तो बंगलो टाइप का मतलब। हाँ, एक अपना ही घर था वो। अब बंगलो अभी आजकल नाम आ गया, पता नहीं उनको क्या नाम बोलते थे। अच्छा, हाँ। तो घर के पीछे कुछ पौधे वगैरह अपने खुद के उगाते थे, ऐसा कुछ था आपके घर में? नहीं, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है वो। और जानवर थे क्या घर में? हाँ जानवर पालते थे क्या? हाँ, जानवर तो नहीं थे, लेकिन पंछी पालते थे। वो बुलबुल रहता ना पिंजरे में डाल करके, ऐसे पंछी पंछी रहते थे। अच्छा, तो अंकल ये खाना वगैरह जैसे कि ग्रेन्स है, चावल है, दाल है, ये सब खरीदते थे या फिर मतलब ने कहाँ से मोस्टली आता था? खरीदते थे। हाँ, बाकी जो खेती था गांव में, वहाँ से आते थे कि नहीं आते थे कुछ याद नहीं है मुझे। तो अंकल हाँ, जैसे आपने बताया कि पंप थे पानी के लिए हाँ, और नल वगैरह नहीं नहीं थे। थे पंप नहीं, और उसके बाद भी बोरवेल बहुत कम थे, लेकिन कुएं थे। लेकिन शहर में बोरवेल थे तो और गांव में अपना कुएं थे। हाँ, आपको बोरवेल। याद है कि आसपास में कहीं अ, नदी या फिर हाँ, तालाब टाइप का कुछ था? नदी तो था ही था, सिंधु नदी जहाँ हम लोग जाते थे साधु बेला में, वो नदी था। और सखर ब्राज था, और रोहिणी को और सखर को आपस में मिलाती थी वो ब्रिज। तो अंकल आपको कुछ याद है आपके घर के आसपास में कोई जैसे जंगल हो या फिर पहाड़ या फिर ऐसा कुछ भी हाँ, थोड़ी नी दूरी पे? वो जो पहाड़ी थे ना, मिचाड़ी जहाँ रहते थे, उसके बैक साइड में थोड़ा जंगल था। आप गए थे क्या कभी? हाँ, हाँ अंकल, तो और एक ये है कि आप आपके घर में बीमार पड़ते थे तो फिर क्या करते थे उस वक्त? वो डॉक्टर थे उन दिनों में, और कुछ हकीम भी रहते थे वहाँ। डॉक्टर भी MBBS डॉक्टर भी हो गए थे तैयार। एक डॉक्टर विशिन दास नाम करके वो हमारा डॉक्टर हुआ करता था, और वो डॉक्टर जो है, ये हमारा उल्लासनगर में जो सेंट्रल हॉस्पिटल बना ना, उसमें भी वो डॉक्टर होकर के अपॉइंट हुआ। तो उनके साथ अच्छा जान पहचान हमारा था, कि हमारा उधर का सिंध का ही डॉक्टर था वो। तो अंकल आपके फैमिली में जैसे कि अब कंस्ट्रक्शन लाइन में थे तो बहुत लोग जानते होंगे शक्कर में आपके आसपास के एरिया में, तो ऐसा था कि कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था किसी तरह से, कोई कांग्रेस में इन्वॉल्व था? उन दिनों में मोस्टली कांग्रेस का अच्छा जोर था, तो पिताजी कांग्रेस को के में जाते थे, कांग्रेस के ही थे। क्यों, उनसे मैंने सुना कि उन दिनों में तो, लेकिन उन दिनों में ये थोड़ा एक पैदा हो गया था, इन कांग्रेस की वजह से ही पार्टीशन हो रहा है, हम लोग को आना पड़ रहा है। दे हैव नॉट वर्क प्रॉपरली, नहीं तो पार्टीशन रोक सकते थे वो लोग, लेकिन रोक नहीं पाए। अंकल आप लोग दिन में टाइम कैसा बता पाते थे? कभी वॉच थे? हाँ, वाच थे, वॉल क्लॉक थे, और बड़े वॉल क्लॉक रहते थे उन दिनों में, ऐसा उसमें पेंडुलम रहता था। और शक्कर में पोस्टल सर्विस थी, लेटर्स आने जाने के हाँ, लेटर सर्विस? आने जाने की सर्विस थी। तो अंकल आपको याद है ये प्रिंसली स्टेट के था क्या शक्कर? कोई कोई नहीं नहीं राजा था? नहीं नहीं, नॉट अ राजा। तो फिर आपने किसी ब्रिटिश ऑफिसर वगैरह को देखा था जब आप वहाँ थे? हाँ, देखा था। और एक क्रिश्चियन लोग रहते ना, उनको भी देखा था, क्योंकि हमारे घर में जो डिलीवरी होता था ना, तो एक काले कलर की एक लेडी आती थी, और शी वॉज अ क्रिश्चियन, और वो मोस्टली फ्रॉक पहने हुए रहती थी वो। तो क्रिश्चियनिटी भी था वहाँ, मैंने देखा, चर्चेज भी थे वहाँ। मतलब अफ्रीकन ब्लैक थी वो, बहुत ज़्यादा ब्लैक थी? हाँ, थोड़ा मीडियम ब्लैक थी, लेकिन पर वो इंडियन थी या नहीं फिर नहीं, बाहर वाली? बाहर वाली थी। हाँ, अच्छा, तो वो डिलीवरी के टाइम हेल्प करने के लिए आते थे? आती थी। हाँ, शी वॉज अ नर्स, यू कैन से। ओके।
कुछ याद है अंकल के, या फिर किसी ने बताया हो कि कोई पॉलिटिकल लीडर चक्कर में आए हुए थे जब आप वहाँ गए थे? हाँ, ये महात्मा गांधी भी वहाँ आए हुए थे और नेहरू भी वहाँ आए हुए थे। सबको अच्छी तरह से वो मेरे पिताजी बताते थे। और इन दोनों में तो पूरा इनके ऊपर ही डिपेंडेंट था पूरा देश का आज़ादी। अंकल अगर आपको याद है तो, या फिर कोई न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के बारे में आपको याद है जो उस वक्त आते थे घर में? हाँ, उन उन दिनों में न्यूज़पेपर लोकल निकलते थे, आते थे, लेकिन नाम याद नहीं है अच्छी तरह से कौन सा पेपर था। अंकल आपको याद है कि अगर जैसे घर के बाहर लोग बेचने आते सामान, जैसे कि बाहर से कोई आया हो कुछ अपना चीज़ बनाया हुआ चीज़ बेचने के लिए, जैसे खाने का कोई सामान, हाँ, खाने का चीज़ बेचने के लिए आते थे। आते थे लोग। हाँ, हॉकर्स लोग आते थे। बाहर वो कौन होते थे मोस्टली बेचने वाले? मोस्टली हिंदू मुस्लिम दोनों ही थे, बिकॉज वो जो बेचारे गरीब लोग हैं वही करते थे ये काम। हाँ, तो और एक चीज़ के ये लोग आदमी औरत सब मतलब ओपनली बात करते थे एक दूसरे से, या पर्दा से? नहीं, पर्दा थोड़ा था। ये देवर के सामने लेडी का ऐसा पर्दा रहता था, वो खुले मुंह से नहीं बात करती थी। जैसे मुस्लिम में बुर्का रहता है, वैसे हम लोगों में, जैसे आप देखा होगा इधर के यूपी के भैया लोग, लेडीज़ लोग मोस्टली अपना दुपट्टा उनका नीचे रहता है, वैसा उनका पल्लू नीचे रहता था बात करने के टाइम पर। अंकल तो जब जब पार्टीशन के वक्त आप 6 साल के थे, तब आपको आपने ऐसा सुना या ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे आपके फैमिली ने डिसाइड किया कि अभी यहाँ रहना बहुत खतरा है, तो ऐसा क्यों बहुत से लोग खाली करते जा रहे थे, तो नेचुरली अकेलापन महसूस हुआ। तो हमारे भी पूर्वजों ने सामान बांधना शुरू किया और हमारे को कराची तक छोड़ने के लिए मुसलमान लोग आए थे। और जब हम लोग शिप में बैठे, वो शिप हमारे गुजरात का एक नवालखी करके एक बंदरगाह था, वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन उधर में नहीं आ सका। तो वहाँ से एक लॉन्च आया हमारे को लेने के लिए। तो मुझे अच्छी तरह याद है, हमारा सामान जो है ना वो ट्रांसफ़र करने के लिए हमारा एक बिस्तर भी अपना समुद्र में गिर गया था। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स तैरने में बहुत नज़दीक थी, तो तैरने में बहुत होशियार थे। और अपने गाँव में भी जाते थे, तो वहाँ भी एक नहर में वो लोग तैरते थे, तो समुद्र में डुबकी मारा और उसको उठा करके लेके आए। फिर हम लोग जहाँ जा कर के धर्मशाला था या पता नहीं क्या प्लेस था गुजरात में, वहाँ आकर के रहे। वहाँ बिस्तरा खोला तो बिस्तरा थोड़ा गीला था, उसको वहाँ सुखाया और बाद में हम लोग अपना इधर अजमेर में आ गए। हम लोग इधर नहीं आए थे, अजमेर में हम लोग रहे 1-1.5 साल, वहाँ अजमेर में रहे। और उसके बाद हम लोग अपना कुछ लोग हमारे मित्र लोग, उनके रिलेशन लोग इधर आ गए, तो उन्होंने बुलाया, तो सब लोग फिर हम इधर आ गए। तो आपके एरिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था? कोई मारकाट, कोई वायलेंस कुछ नहीं हुआ था? वायलेंस हुआ था। पिताजी बता रहे थे कि उनके एक मित्र थे, वो कोई ऐसी रेवोल्यूशनरी पार्टी के मेंबर थे। तो उधर से इन्होंने भगत कंवर राम को मारा था। तो भगत कंवर राम को मारा था, तो इधर हिंदू लोगों ने भी उनका एक जो मौलाना था क्या, उसको मारा था। ऐसे इन्हें दिल में पॉइजनस पैदा हुआ था, पॉइजन, और उसकी वजह से ही बढ़ता गया। ये तो सिंध वॉज अ वेरी पीसफुल एरिया, लेकिन ड्यू टू सम लीडर लोग ऐसा हो गया। तो ये जो आपके नेबर्स थे, आपके आसपास में रहने वाले, वो क्यों खाली कर रहे थे? वही अपना डर की वजह से, भाई पूरा पाकिस्तान खाली हो रहा है, चलो भाई ये अभी पाकिस्तान बन गया, अभी ये इंडिया नहीं है। पार्टीशन हो गया तो वो एरिया मुस्लिम ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया गया।
तो बोलता अभी ये हिंदुस्तान नहीं है, हम लोग जाना चाहिए। तो मुस्लिम लोग ऐसे बोल रहे थे जाने के लिए या फिर ऐसा कुछ नहीं नहीं, गलत काम? ऐसे भी बोला कि आप लोग आना वापस। और हम लोग को तो ऐसा ही विचार था कि हम लोग जब अभी टेम्पररी जा रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे, आपस में लड़ाई फसाद, तो हम लोग फिर वापस जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम इधर ही रह गए। तो आपने यहाँ से जो तब जो इधर अनडिवाइडेड इंडिया का जो इंडिया वाले पार्ट से जो मुस्लिम्स आ रहे थे, वो लोगों ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया हो? हाँ, ऐसे ही हुआ, जब मुस्लिम यहाँ से आ गए, वहाँ गए, उन्होंने ज़्यादा उनको पॉइजनस कर दिया। हमको बहुत तकलीफ़ हुआ है, आप लोग इनको अभी तक खाना खिला रहे हो, बिठा रहे हो, तो निचली बात करते करते उनको ज़्यादा पॉइजनस बना दिया। तो आपके फैमिली में सब सेफ थे, सब लोग हाँ यहाँ आते हैं यहाँ पे? हाँ, हम लोग एकदम सेफ थे। फिर आप लोग शक्कर से कराची आए? हाँ, कराची से बाय शिप हम लोग गुजरात का एक नौलखी करके एक बंदरगाह था, वहाँ जाना था, लेकिन ड्यू टू लो टाइड हम लोग सामान बीच में ही उतारा, और हमारे को जो लॉन्च बोलते हैं ना, वो लॉन्च लेकर के आया। तो सर ये डेट कौन सा था, मतलब ये पार्ट आज़ादी के पहले आए या फिर बाद में आए? आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, हो सकता है कि शायद 48 का स्टार्टिंग हो, 47 में पार्टीशन हुआ, लेकिन 48 में ही हम लोग, अर्ली इन 48 जनवरी फरवरी हम लोग इधर आए। तो फिर यहाँ आने के बाद आप लोग फिर अजमेर गए, तो अजमेर में रेफ्यूजी कैंप्स में गए थे आप? नहीं, वहाँ क्या था, कुछ मुस्लिम पाड़े खाली हो गए थे, तो एक हम लोग रहे जहाँ, वो दावल की हवेली करके नाम था, और मेरे नाना जी है ना, वो वहाँ पहले पहुँचे, तो हम लोग भी नाना जी के साथ वहाँ जा कर के रहे। नाना जी थे, नाना जी के भाई थे। तो नाना जी को वो हवेली के बारे में कैसे पता चला? जैसे स्टेशन में उतरे ना, तो क्यों रेलवे में थे, तो रेलवे का कोई कर्मचारी उनके साथ मिला, उन्होंने बताया कि वहाँ एक बड़ा हवेली खाली है, आप सब लोग उसमें जा सकते हो। तो हम लोग उस खाली हवेली में सब लोग शिफ्ट किया, आपस में डिसाइड किया कि चलो आप ये कमरे ले लो, वो कमरे ले लो। तो आपके और आपके जो भाई और फैमिली थी वो सब यहाँ आ गए और आपके नाना के साथ रहने के लिए? नाना के साथ रहते थे। मेरे तो भाई तो उस दिनों में पैदा ही नहीं हुए थे, भाई का मेरा इधर ही। आपके पापा के भाई? हाँ, वो सब उधर ही आए थे। हाँ, शेष और आपके दादा दादी भी आए थे? दादा दादी भी आए थे। हाँ, फिर वहीं रहे अंकल? वहीं रहे 1 ईयर तक हम लोग वहाँ रहे, उसके बाद इधर आ गए हम लोग, इधर उल्लासनगर? उल्लासनगर। फिर उल्लासनगर में यहाँ आके कहाँ रहे आप? उल्लासनगर में हम लोग 4 नंबर में एक, उसको अभी आजकल 26 सेक्शन बोलते हैं, वहाँ एक बैरक में रहे। वहाँ बैरक में हम लोगों को दो दो अपना कमरे मिले, उन्होंने में ऐसा था, मिलिट्री रहती थी ना वहाँ, तो शीख डाल करके पर्दा था, वो 2 हमारे को विंग्स दिए गए, और उसमें हम लोग रह रहे थे। फिर उसके बाद फिर आपके पापा क्या करने लगे यहाँ पर? वहाँ यहाँ आने के बाद पापा जी को अपना बॉम्बे पोर्ट्स रेलवे में जॉब मिला, और मेरे चाचा जी को सेंट्रल हॉस्पिटल में जॉब मिला, और दोनों जॉब भी करते थे। फिर आपका आपका अपने स्कूल जाना शुरू किया? हाँ, यहाँ आकर? यहाँ आकर हाँ, और तो प्राइमरी स्कूल में ही गए, और क्योंकि मेरा एज बढ़ गया था, तो उसके लिए उन दिनों में डबल प्रमोशन देते थे, मीन्स मेरे को फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड मैंने साथ में ही पास की, मुझे ट्यूशन रखा दिया गया, और मैं तो यहाँ सिंधी मीडियम था उनका? सिंधी मीडियम था, पूरे उल्लासनगर में सिंधी मीडियम था, इवन बॉम्बे में भी सिंधी मीडियम था। बाद में धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम ने अपना जोर पकड़ा, और सिंधी मीडियम सभी जगह से दूर होता गया। फिर आपने स्कूल कंप्लीट किया? मैंने एसएससी सिंधी मीडियम से ही किया। फिर उसके बाद मैं जॉब को लग गया। 1968 में मैंने
फिर अपना पढ़ाई शुरू किया और इंटरमीडिएट आर्ट्स पास करके फिर जॉब में कंटिन्यू किया, ज़्यादा पढ़ा नहीं मैं। क्या जॉब किया आपने? मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अमरनाथ में लगा। पहले तो एक अमरतारा इंडस्ट्री था बॉम्बे में, वो ये जो आप लेते हैं ना आजकल सेलो टेप बनता है, वो जर्मन कोलोबोरेशन से उन्होंने सेलो टेप बनाना शुरू किया था, तो उसमें मैं काम करता था और एट दैट टाइम आई वाज द टाइपिस्ट देयर। और उसके बाद फिर मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अमरनाथ में लगा और मैं पूरे 40 साल यहाँ ही किया जॉब और रिटायर हो गया बाद में। अच्छा, तो फिर आपके नाना की फैमिली का फिर क्या हुआ बाद में? वो लोग नाना की आपको फैमिली कैसे- थोड़े दिनों के बाद वहाँ ही रहे और वहाँ उन्होंने अपना कन्फेक्शनरी का काम शुरू किया। अच्छा, हाँ, कन्फेक्शनरी अपना खट्टा मीठा गोली बनाते हैं ना, जैसे चॉकलेट गोली, वो शुरू किया। और फिर वहाँ कोटा सिस्टम हो गया, शक्कर कोटा पर मिलने लगा, तो उसकी वजह से बाद में फिर वो लोग ने वहाँ से शिफ्ट करके इधर आ गए, इधर ही आकर के रहने लगे और यहाँ ही उन्होंने जॉब किया। तो मुझे मेरे मामा जो है ना, वो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर था, वीटीसी बोलते थे जिसको, उसमें उनको जॉब मिल गया, दो मामा को। बाकी एक मामा तो बहुत छोटा था और नाना जी जो वो अपना बिजनेस ही करते थे, छोटा मोटा कन्फेक्शनरी का काम करते थे और ऐसे करके उन्होंने भी अपना इधर मकान बना लिया था। अंकल आपको पार्टीशन के बारे में क्या बोलना है, क्योंकि आपको कैसी फीलिंग आती है कि आपको वहाँ अपना खुद का घर, आपके फैमिली को अपना खुद का घर छोड़ के इस साइड आना पड़ा? ये तो हम लोग तो बच्चे थे, लेकिन फिर भी एक फीलिंग होती है ना, जैसे अपना घर छोड़ने का, वह फीलिंग थोड़ी टाइम के लिए मेरे दिल में भी आया था। लेकिन मैंने देखा मेरे मम्मी को बहुत याद आता था, वहाँ अपना घर छोड़ दिया, अपना सब मकान था और बर्तन बर्तन बहुत छोड़ के आए थे ये लोग, भाई जाएंगे वापस हम, थोड़े दिनों में झंझट पूरा हो जाएगा। तो कुछ बर्तन वो लोग लेके आए थे, उन दिनों में स्टोव तो था नहीं, चूल्हा वूल्हा सब वहीं छोड़ करके आ गए। तो इट वॉज अ वेरी 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 यानी हैरेसमेंट टू लेडीज़। लेडीज़ लोग को अपने घर से ज़्यादा मोह रहता है। तो मुझे मेरे मम्मी को बहुत वो जूना घर याद आता था, मेरी दादी माँ को बहुत घर याद आता था। कब से वो उस घर में रह रहे थे, कितने टाइम से वहाँ रह रहे थे? दैट आई डोंट रिमेंबर, लेकिन बहुत साल हो गए। बाकी जो गांव का घर था वो तो बहुत सालों से था, शायद 100 ईयर्स से पहले होगा, या लेकिन जो सखर में घर था शायद वो 15-20 साल हुए होंगे। तो आप लोग कभी रेफ्यूजी कैंप्स वगैरह में नहीं गए? हाँ, इधर रहे ना रिफ्यूजी कैंप में, हाँ, 2 साल तक ये उल्लासनगर वाला रिफ्यूजी कैंप, हम लोग उसी रिफ्यूजी कैंप में रहे। हमें गवर्नमेंट से राशन मिलता था और वो लोग राशन से ही हम लोग अपना घर चलाते थे। धीरे धीरे फिर हम लोग के एंसेस्टर्स बिजनेस करना शुरू किया, कपड़ा भी बेचते थे मेरे पिताजी। बाद में जॉब जॉब मिला, बॉम्बे में जो मिल्स थे ना, उधर से कपड़ा लेके आना, फिर घर घर में बेचना। हमारे अच्छी तरह से याद है कितने ऐसे लोग भी दोस्त थे पिताजी के जो गांव में जाकर के कपड़ा बेच के आते थे, विलेजेस में, यानी यहाँ के जो उल्लासनगर के नज़दीक विलेजेस है ना, बदलापुर अम्बरनाथ साइड में, तो वहाँ जाकर के नेरल साइड में विलेजों में बेच के जाते थे। तो गवर्नमेंट ने और क्या क्या हेल्प किया था अंकल लोगों को? आपको क्या लगता है कि मतलब पहले और तो क्या? पहले तो ये विंग दे दिया, मिलिट्री खाली करवाया इधर से, मिलिट्री खाली करवा करके हम लोग को रहने के लिए वो दिया। केवल हमारे लिए उल्लासनगर नहीं खुला था, असवली कैंप भी खुला था अपना नासिक के साइड में, फिर अपना अकबर कैंप खुला था थाना में, और ये पूना साइड में भी एक कैंप खुला था। तो वहाँ बहुत से लोग सेटल हो गए। मेरी मिसिस का शादी तो अभी बाद में हुआ। शी वाज कौन से कैंप में गए थे, असफल कैंप, वो असफल कैंप में जा कर के रहे थे। हम लोग का मिलन होना था, वो असफल से यहाँ उल्लासनगर आ गए और हम भी अपना अजमेर से इधर उल्लासनगर आ गए। दो इट वॉज हॉरिबल,
but it was fixed by nature, I think. So what assets did you lose? आपका घर तो ancestral ऐसे से home खेती बाड़ी तो घर भी तो क्लेम मिला, इन्होंने हमारे पूर्वजों ने क्लेम डाला, हम इतना प्रॉपर्टी छोड़ करके आए। और वो प्रॉपर्टी का असेसमेंट किया, चीफ सेटलमेंट कमिश्नर जो थे वो यहाँ थे, वो करके देते थे। और किसको भाई 5,000 मिला, किसको 2,000 मिला, किसको 5 लाख मिला, जिसका जैसा जैसा प्रॉपर्टी था उधर। आपकी मॉम कोई ज्वेलरी लेकर आई थी? हाँ, थोड़ा गोल्ड तो था, और मोस्टली वो लोग पहन करके ही आए थे, ऐसे हाथ में नहीं लेके आए थे। तो कराची में जब आए थे शक्कर से, तो वहाँ आपने कुछ वायलेंस देखा था? हाँ, देखा था वायलेंस। वहाँ पे क्या हो रहा था उस टाइम पर? वहाँ भी ऐसे ही झगड़े होते थे, और मोस्टली अपना जल्दी जाना ही था हमें, तो वहाँ रहना तो था ही नहीं, बिकॉज दैट वाज नॉट परमानेंट प्लेस, टेम्पररी प्लेस में रहते थे। इन्होंने बहुत अच्छा देखा, इनके पड़ोस में कराची में ये लोग रहते थे, इनके यहाँ तो बोलता है टुकड़ा टुकड़ा करके काट करके गए थे आदमी को घर में। और तभी बोला भाई हम लोग इधर से निकलते हैं। आपको याद है आपकी फैमिली इस बारे में बैठ के बात कर रही हो तो उनके क्या ओपिनियंस होते थे इस बारे में, पार्टीशन के बारे में? पार्टीशन के बारे में ओपिनियन तो अच्छा नहीं था, बट देवर होपफुल दैट हमको फिर जाना है, हम जाएंगे, लेकिन वो होप धीरे 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 गुम होता गया। कब तक वो होपफुल थे कि वो वापस जा पाएंगे? शायद 2-2.5 साल तक था, उसके बाद सब लोग अपने अपने जॉब में लग गए। जैसे मनुष्य की प्रवृत्ति रहती है, भूलता है आदमी, और ये भूलने का आदत नहीं होता तो आदमी चल भी नहीं सकता। तो आपको चांस मिला था वापस अपना घर जाके देखने का? आपने कभी सोचा है वापस रिटर्न करना? बहुत पहले दिल था कि मैं जा कर के वो देख के आऊँ, लेकिन अभी दिल नहीं है ऐसा। लेकिन पहले था थोड़ा कि भाई चलो माता पिता के साथ जा कर के घूम के आऊँगा। आपने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि आप देख कर आए हो करके। कहाँ कहाँ मैंने अजमेर का, अजमेर से मैं इधर आया ना, तो फिर मैं अजमेर गया, मेरी वहाँ मौसी रहती थी, वो गुज़र गई, तो मुझे याद आया, जैसे मुझे याद आया कि वो मेरा घर वो था अजमेर। मुझे वो सिंध का इतना घर याद नहीं है क्यों, था मैं चाइल्डहुड में था, लेकिन वहाँ मैं जब था तो वहाँ थोड़ा थोड़ा बड़ा तो हुआ था ना, तो मैं वो अजमेर का वो दावल की हवेली देखने के लिए गया था मैं। तो वहाँ देखा वो दावल की हवेली भी एक शॉपिंग मॉल बन गया है, मोस्टली होलसेलर वहाँ अपने शॉप लगा करके बैठे हैं। तो एक को रिक्वेस्ट किया मुझे, भाई ऊपर जा कर के देखना है, तो उसने मेरे को जाने को दिया था। मेरे मामा गए थे और भी लोग गए थे उनके साथ। तो सर आपको याद है कि आपके साथ में जैसे आपकी फैमिली आ गई थी तो और भी आपके आसपास जो सिंधी जो हिंदूज रहते थे वो लोग भी यहाँ वो लोग भी आए, हाँ आ वो गए लोग भी थे आए। सर? कोई वहाँ रह गया था? हाँ, कुछ लोग तो रह गए थे और अभी आए नहीं आए पता नहीं, लेकिन कुछ लोग रह तो गए थे। तो आपके साथ जो यहाँ आ गए वो आपको मिले यहाँ पे? हाँ, मिले। तो आपको क्या लगता है कि उनके ऊपर क्या असर हुआ, मतलब उनके क्या वो मतलब नॉर्मल लाइफ जी पाए यहाँ आने के बाद, या फिर और मुश्किल हो गई उन लोगों के लिए? मुश्किल तो ये जॉब था नहीं, काम करने के लिए कोई अवसर नहीं दिख रहे थे। सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि कहाँ ना कहाँ जॉब मिले। किसी लोगों ने 500 रुपया खरीदा करके कुछ सामान लाया और बेचा, ऐसे करके बहुत स्ट्रगल किया आदमियों ने। वह स्ट्रगल मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे पिता माता ने भी किया, जाकर के कपड़ा लेके आते थे बॉम्बे मिलों में से और इधर आकर के बेचते थे। दुकान तो था नहीं, घर घर में जा कर के बेचना पड़ता था।
आपको याद है कि आपके स्कूल वगैरह के फीस कितने थे और कुछ फीस था तो भी? हाँ, फीस था। ये प्राइमरी स्कूल तो गवर्नमेंट के थे, वो तो फ्री थे। कुछ प्राइवेट स्कूल थे, उसमें फ़ीस था 4 रुपया, 10 रुपया ऐसा फ़ी रहता था, ज़्यादा फ़ी नहीं था। और वो भी हम लोगों को साल के बाद हम लोग फॉर्म भरते थे तो वापस भी मिलता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, 5th स्टैंडर्ड में जो मैंने फ़ी भरा था उसका 60 रुपया मेरे को वापस मिला था साल के बाद। और वो 60 रुपया भी हमें बहुत बड़ा लगता था उन दिनों में। यहाँ के अंकल यहाँ के लैंग्वेजेस कैसे चेंज हुए आपके? लैंग्वेजेस जो थे मतलब तब तो सिर्फ सिंधी थी, यहाँ हाँ। के क्या चेंज लगता है अ, आपको आपके हम लोग लाइफ? हिंदी भी नहीं सीखे, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है जो बुढ़िया रहती थी ना, वो हिंदी और सिंधी मिक्स करके बात करती थी। और अभी भी वो अच्छा लगता था कि कैसे वो बेचारी मैनेज करती थी वो लोग। लेकिन हम लोग क्यों तो पढ़े स्कूलों में, तो इसीलिए हमें हिंदी अच्छी तरह से आई। तो अंकल ये एक चीज़ पूछना भूल गई मैं कि सिंध में आपको जैसे अगर याद हो तो कैसे टाइप का खाना होता था और वहाँ यहाँ में क्या फ़र्क लगता है आपको? मोस्टली कोई खाने में फ़र्क नहीं है, हम लोग वही बनाते हैं जो पहले सिंध में बनाते थे। हमारे डिशेज़ वही हैं। लेकिन आजकल ये मार्केट में तो चाइनीज़ भी घुस गया है, तो इसके लिए वो भी खाते नहीं, तो मोस्टली सिंधी पंजाबी खाना सेम था। दालें सेम है, अभी भी वो दाल मखानी वहीं है। उड़द का दाल जैसे वहाँ बनता था वो यहाँ ही बनता है। टिदाली दाल वहाँ जो बनता था यहाँ भी बनता है। प्रिपरेशन हमारा सेम है। और टेस्ट मतलब क्वालिटी ऑफ द फूड, क्योंकि तभी आपके खेतों में से आता था और अभी अपने को पता नहीं है कि कहाँ से आता है, तो हाँ, आपको लगता है अभी भी इधर ही हम लोगों ने फ़ील किया है ना, जो पहले हम लोग खाना खाते थे आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले, उस खाने में और आज के खाने में थोड़ा टेस्ट में फ़र्क है। बिकॉज़ ऑफ़ सब लोग बोलते हैं केमिकल है इसके लिए पानी का, लेकिन अब इधर ही फ़ील हुआ है। अंकल आपको लगता है कि क्लाइमेट में भी काफ़ी फ़र्क हुआ है, क्योंकि सिंध में बिल्कुल बारिश नहीं होती थी और वहाँ नहीं, बारिश होती थी, लेकिन थोड़े थोड़े समय के लिए। और गर्मी में बहुत गर्मी रहती थी, हॉरिबल गर्मी रहती थी। ठंडी में बहुत ठंडी रहती थी। ये ठंडी में ये चमड़ा निकल जाता था जितना, इतनी ठंडी रहती थी। तो आपको लगता है यहाँ बेटर है या फिर खराब है? आपको कैसा लगता है अभी इस तो वेदर के बारे में? अभी तो ऐसे लगता है कि यही हमारी मातृभूमि है। इतने सालों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हम तो छोटे बच्चे माता पिता की गोद में आ गए, तो उसके लिए हमें तो ये बहुत फील होता है कि यही अच्छा है हमारे लिए। और ऐसे लगता है कि शायद ये जिस एरिया में अभी मैं रह रहा हूँ यहाँ, तो ये बॉम्बे एरिया या ठाणा डिस्ट्रिक्ट, इसका क्लाइमेट से बेटर क्लाइमेट कहाँ है ही नहीं, ऐसे लगता है। आपके लिए पानी मंगा लूँ क्या? नहीं। अंकल तो ये यहाँ यहाँ का एजुकेशन का सिस्टम के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब यहाँ आके जो आपने पढ़ाई की वगैरह, तो आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा बेटर होगा या फिर बोला होगा कि यहाँ का या वहाँ का बेटर है? यहाँ का जो पढ़ाई है वो तो अभी तो महाराष्ट्र का जो बोर्ड है, पूना बोर्ड, उसका ही सिस्टम से चालू है, तो अच्छा है, सबको जॉब वॉब मिलता है। और ये मान्य है ये जो सिस्टम है, तो उसके लिए हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। अंकल तो आप आपका आपके करियर था 40 साल का, आप जॉब कर रहे थे, आप कहाँ कहाँ मतलब बाद में रिटायरमेंट के बाद भी अपने लाइफ में कहाँ घूमने जा गए इंडिया में या फिर नहीं, मैं तो बहुत घुमा हूँ इंडिया में। इवन वाइल वाइल आई वाज इन सर्विस, मैं सभी बच्चों को पूरा भारत घुमाया हूँ। यानी चंडीगढ़, अपना वैष्णो देवी, अपना पूरा पंजाब में घुमा हूँ, अमृतसर तक गया हूँ। और उसके बाद दक्षिण में भी मैं मैसूर, ऊटी, आपका
ये मद्रास, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, सब हम लोग घूमे। मैं तो जॉब के सिलसिले में कलकत्ता डिपुटेशन भी होके आया हूँ। कलकत्ता में डम आपका निहाटी, कलकत्ता में आगे चल कर के अपना ईशापुर, वहाँ भी मैं गया हूँ। और ये जो मेट्रो ट्रेन बोलते हैं ना, ये मेट्रो ट्रेन बहुत साल पहले 95 में मैंने वहाँ देखा, वहाँ था। ये बाद में यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ दिल्ली विली साइड में। आप अपनी बेटी के साथ कभी यूएस वगैरह गए थे? नहीं गया। बहुत वो लोग बोलते हैं भाई, तो हमने अभी तक पासपोर्ट भी नहीं बनाया। मेरी ये बड़ी लड़की है एक, अपने लड़के का कुछ एग्ज़ाम हुआ तो फेलिसिएशन होता है ना, सर्टिफिकेट जब देते हैं, तो बहुत ज़िद किया कि चलो हमारे साथ आप भी, लेकिन हम दोनों गए नहीं वहाँ। उनकी वीडियोस देखे, बस उसमें ही खुश हो गए हम लोग। तो अंकल आपकी फिर आपने शादी कब की? आपकी फैमिली लाइफ के बारे में थोड़ा सा। हमने शादी की 1966 में, और यहाँ उल्लासनगर में ही हुई शादी। यहाँ ही सब बाल बच्चे हुए, पढ़े लिखे बड़े हुए। उनकी शादियाँ भी यहाँ ही हुई। तो आप किसके साथ रहते हैं अभी आज? आजकल हम बस मियाँ बीवी अकेले हैं इसी हाल में। सब लड़कियाँ थी, अब देखेंगे ये फ़ोटो, शादी करके हर एक अपने अपने घर में सुखी हैं। तो कितनी बेटियां हैं आपको? 4 लड़कियाँ हैं। तो 2 लड़कियाँ उल्लासनगर में रहती हैं, बड़ी लड़की यहाँ रहती है, और लास्ट लड़की जो है वो भी 5 नंबर में रहती है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर डॉटर है वो अरूबा में रहती है, डच कैरिबियन में, और वहीं का सिटीज़नशिप है उनको। लेकिन वो चाहें तो बाद में इधर की सिटीज़नशिप तो है ही उनका, लेकिन वहाँ का उनको ग्रीन कार्ड मिल गया है। बच्चा वहीं उनको एक पैदा हुआ। और बाकी जो एक लड़की है जो अपना पूना में रहती है, शी इज़ अ टीचर एंड अच्छा जॉब करती है। उसने पढ़ाई भी किया, पढ़ाई के बाद अपना एबेकस भी सीखा, और वो एबेकस की क्लासेस चलाती है, अपने क्लासेस भी चलाती है। लेकिन लड़कियां सुखी हैं, इसीलिए मेरे मन को शांति है। अच्छा अंकल, तो आपके ये इतना ही अब ये पूछना चाहूँगी कि मैं आपके पार्टीशन के बारे में जब आप सोचते हो तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ और करना चाहिए था जिससे जो भी खून खराबा हुआ वो ना हुआ होता? अगर आप कुछ इमेजिन करते हो कि अगर कुछ किसी और तरह से होता है तो वो आप क्या सोचते हो उस बारे में? ऐसे मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपना प्रयास किया होगा ना कि ये वायलेंस ना हो, लेकिन क्योंकि हम लोग इनडिसिप्लिन है, और उस इनडिसिप्लिन की वजह से ही हम लोग आपस में लड़े। नहीं तो लड़ने की आवश्यकता ही क्या थी। अभी भी आप देखिए, पार्टीशन तो पूरा हुआ नहीं। जितना पाकिस्तान में मुसलमान है उससे ज़्यादा मुसलमान अभी इंडिया में है, तो क्या पार्टीशन की आवश्यकता थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। उन दोनों में खेल तमाशा हुआ, और बेचारे कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग उधर से इधर आ गए, उधर से इधर गए, ऐसे करके पार्टीशन हुआ। कुछ लीडरों को अपना प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए था, तो लोगों ने जल्दी जल्दी किया, लेकिन चाहते सब्र से। जैसे महात्मा गांधी ने बोला था कि पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन वो भी पता नहीं क्यों ढीला पड़ गया, किसकी वजह से ढीला पड़ गया, और पार्टीशन हो ही गया। तो आपको लगता है कि कुछ और करना चाहिए था इनको, जैसे कि शायद नहीं रोकते मुस्लिम्स को वहाँ से? नहीं, सब्र करना चाहिए था दोनों को। अभी आप देखा होगा कि इंडिया में भी बहुत बार ऐसे वायलेंस होते हैं, लेकिन ठंडे हो जाते हैं ना, उनको मालूम है अभी कहाँ जाएंगे। तो ये सिचुएशन उन दिनों में सबको रियलाइज़ कराना था कि यही आपका मुल्क है, क्या कहाँ जाओगे आप। लेकिन यहाँ लोगों ने एक
अंग्रेज़ों के कहने पर या किसी के कहने पर पार्टीशन दे दिया, भाई ये एरिया इंडिया है, ये पाकिस्तान है। तो नेचुरली मुसलमान लोग अपना पाकिस्तान जाने की ठान के रखा था, हिंदू लोगों ने इंडिया में आने की ठान रखा था। तो इसके लिए पार्टीशन हो गया और ये सफ़र सबको सहना पड़ा, हिंदुओं ने भी सहा, मुसलमानों ने भी सहन किया। सर आज आपके जो दोस्त हैं वो कैसे सब सारे पार्टीशन विटनेसेस हैं या फिर आपने यहाँ पे और भी बहुत सारे दोस्त बनाए हैं? कुछ पार्टीशन विटनेस हैं और मोस्टली अब इधर ही मेरे फ्रेंड बने, वो तो पार्टीशन उनको नहीं मालूम होगा। और जॉब में रहने के बाद तो कितने दोस्त बंगाली भी मिले, महाराष्ट्रियन भी मिले, गुजराती भी मिले, तो सभी लोग मित्र हो गए मेरे। ऑफिस के अंदर ही मैं रह रहा था, तब से मैं पंढरपुर जाना शुरू किया। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र का आदमी भी इतना पंढरपुर नहीं जाता होगा। मैं 40 ईयर से हर साल पंढरपुर जाता हूँ, कहीं भी भूल नहीं होती मेरी। देव, आनंदी, पंढरपुर, तुलजापुर, अक्कलकोट करके गानकापुर में 3 दिन का पारायण करने के बाद वापस आते हैं हम लोग, और वो अभी तक चलता है। सर तो अभी आप क्या बताएंगे कि आपकी लाइफ अभी कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसी है? आप अभी खुश हो से सब आपके बच्चे सब ठीक? कोई अपना खेद नहीं है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, और ऐसी होप है कि आगे भी चल करके सब अच्छा होगा, क्योंकि करने कराने वाला वही है, ये सब उसका ही खेल था। आप देखा होगा कि हम लोग तो फिर भी बचे, कितने लोग तो बेचारे गए भी, लेकिन क्यों गए वो लोग पता नहीं, लेकिन हम लोग को क्यों भगवान ने ज़िंदा रखा। अब देखा हो कितने रिवोल्यूशन हो गए हर जगह में। जर्मन का रिवोल्यूशन, नाजी लोगों का जो रिवोल्यूशन है, पूरा का पूरा चैम्बर में खलास कर देना, ऐसे चैम्बर यहाँ भी बने। और नवाबों की लड़ाइयों में भी कितने हमारे लोग मारे गए। तो ये सब उसका देन है कि किसी को बलवान बना देता है। जैसे शहर में एक गुंडा पैदा हो जाता है, वो लोग एक बहुत बड़े गुंडे पैदा हो गए और कितने लोगों को मार दिया। अंकल तो आज आप अपना दिन कैसे स्पेंड करते हो नॉर्मली? आपका एवरीडे लाइफ क्या होता है? ऐसे तो मैं रिटायर्ड हूँ अभी, जस्ट जब से आप आए ना, उसके पहले मैं एक मेडिकल वैन पर गया था। सत्य साई का आपने सामने फ़ोटो देखा होगा, इनको थोड़ा हाईलाइट करिए कि मैं इनका ही अपना अनुयायी हूँ। और इनका मेडिकल वैन चलता है, पूरे गांव में भी जाता है और शहर में भी 2-3 जगहों पे होता है। तो डॉल्फिन क्लब में वहाँ खड़ा करते हैं, वहाँ सभी लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। वहाँ थोड़ी मुस्लिम बस्ती है, तो हम लोग बिना धर्म भेदभाव के हम लोग सबको दवाइयाँ देते हैं वहाँ। और वहाँ मेडिकल वैन के साथ 2 लेडीज़ हैं, दवाई देती हैं, और ड्राइवर जो है वो हमारा बेचारा उठ कर के केस पेपर निकालता है, और एक डॉक्टर है जो प्रिस्क्राइब करता है दवाइयाँ, और फुल फ्लेज मेडिसिन उसमें अवेलेबल है। मोस्टली कोई भी मेडिसिन उनको बाहर खरीदनी नहीं पड़ती है, हम लोग ही प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। और उसके बाद हम लोग हर फ्राइडे को हम लोग जाते हैं अलग अलग विलेजेस में सेवा करने के लिए, सत्य सेवा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और वहाँ जा कर के उनको कुछ उनकी ज़रूरत की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें बांटते हैं हम लोग। कभी उनको चप्पल चाहिए, गांव में कितने लोगों को चप्पल नहीं रहता है, स्कूल जाते हैं तो बिना चप्पल के उनको जाना पड़ता है, तो उनके लिए चप्पल लेके जाते हैं, साड़ियाँ लेके जाते हैं, बेडशीट लेके जाते हैं। ठंडी के दिनों में हम लोग विक्रमगढ़ आपने सुना होगा, वहाँ जाकर के कंबल बांट के आना, अलग अलग जगहों में हम लोग उनको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। और अभी जैसे एग्ज़ाम्स पूरे हो जाएंगे ना, तो स्कूल खुलने के पहले हम लोग जा कर के वहाँ नोटबुक बांट के आते हैं, नोटबुक, और जो बड़ी कक्षा वाले हैं उनको रजिस्टर्स बांट के आते हैं। और वो पैसे हम लोग खुद ही रेस करते हैं, कोई गवर्नमेंट से नहीं लेते। आपस में बैठ कर के भाई तुम 5,000 दो, तुम 2,000 दो, और जो भी जितना दे सके, किसी को फोर्स नहीं करते, और उससे हम लोग खरीदते हैं और बांट के आते हैं। तो ये आप खुद से कर रहे हो अंकल? मैं खुद से नहीं, मेरे सभी मित्र सत्य सही सेवा ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हम लोग मेंबर्स हैं, वो मिल कर के ये काम करते हैं। कल भगवान श्री सत्य साई बाबा के माता जी का देहांत का दिन था, उसको हम लोग ईशरमा डे करके मनाते हैं। वह भी हम लोगों ने मिड टाउन रोटरी पार्क है ना, वहाँ मनाया था। तो उसमें अलग अलग बच्चे लोगों को जो हम लोगों ने कैंप लगाया था पूरा महीने के लिए,
वो समर कैंप में उन लोगों को वेदांत सिखाया, उन लोगों को मंत्रास भी सिखाया है, उन लोगों को एक कल्चर प्रोग्राम जो उन्होंने बनाया वो भी, और योगाज भी सिखाया, वो उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया। और ये कार्यक्रम में हम लोग सब वहाँ थे, करीब करीब 100 तक तो बच्चे थे, और हम लोग भी गए थे। मेरी मिसेज भी उस प्रोग्राम में गई थी। अच्छा, तो आप ये आप करते हो आपके साइड बाय साइड, हाँ। रोज करते हो अंकल, रोज जाते हो? नहीं, हर फ्राइडे को जाते हैं, और मंडे को तो यहाँ कैंप लगता है, और डेली में और दोस्तों से मिलता हूँ, कहीं योगा में भी चला जाता हूँ, और हर संडे को एक स्टडी सर्कल होता है, उसमें भी मैं जाता हूँ। वह केवल 1-1.5 घंटे का रहता है। उसमें हम लोग आपस में रिलीजन के ऊपर बात करते हैं, भगवान के ऊपर बात करते हैं, आत्मा क्या है। हम एक्चुअली आत्मा है, हम लोग राम श्याम ये नाम जो है हमको दिए गए हैं, बट वी हैव टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ आत्मा, और आत्मा कभी भी मरती नहीं है। ये ऐसी बात। ईश्वर उपनिषद के कुछ कोटेशंस हम लोग निकालते हैं, वो पढ़ते हैं। और इसी सत्य सेवा ऑर्गेनाइजेशन का जो उल्लासनगर है, उसको हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट करके बना दिया है। उसका मैं स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर हूँ, यानी मेरा काम है स्पिरिचुअलिटी फैलाना, सबको बताना। एक मिनट पानी पी लूँ मैं, बंद करें। हाँ, तो आप बोल रहे थे कि आप भजन। शाम को जो एक्टिविटी है हमारा, इधर भजन होता है शाम को, सत्य सही सेवा समिति है 2 नंबर में, वहाँ डेली भजन होता है, वहाँ भी जाता हूँ मैं। अच्छा अंकल, ऐसा कुछ है जो मैंने आपको नहीं पूछा लेकिन आप अपने आप से आप बताना चाहेंगे, जो आप मैसेज कुछ देना चाहते हो? हाँ, मैसेज तो मेरा यही है कि हमारे को आपस में प्यार से रहना चाहिए, और लव जो है ना गॉड का फॉर्म है प्योरली, और उसके बाद और कुछ भी नहीं है। और इतना कुछ वो दे रहा है भगवान हमारे को, और हम लोग मायावश भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा है, ये हमारा है। एक्चुअली हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब इधर छोड़ के जाना है। तो मैं तो सबको यही मैसेज दूंगा कि वी शुड स्पीक ट्रुथ, वी शुड रिमेन विद गॉड। अंकल, आप ये जो करंट और फ्यूचर जनरेशंस हैं उसको आप ये मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, सबके लिए है। और आजकल के जो मेरा सिंधी समाज है उसको ये मैसेज दूंगा। मैंने बहुत सुना है उल्लासनगर में कितने लोग कन्वर्ट हुए, क्रिश्चियंस बन गए हैं। आश्चर्य लगता है कि हम लोग के माता पिता हमको सिंध से लेकर के आए गोदी में, किस लिए लेके आए कि हमारा रिलीजन बचे। नहीं तो हम मुसलमान हो जाते तो कोई तकलीफ़ नहीं थी, हम लोग वहाँ मुसलमान बन जाते तो हम लोग वहाँ ज़िंदा भी रहते, खुश भी रहते। लेकिन हमारे माँ बाप अपने धर्म को बचाने के लिए हमको गोदी में लेकर के इधर आए, लेकिन हम लोग भूल गए कि कितने कष्ट हमारे पूर्वजों ने उठाए थे, और यहाँ हम लोग स्वार्थवश जो है वो हमारा धर्म चेंज करते हैं। एक्चुअली भगवान जिस धर्म में, जिस कंट्री में जिसको पैदा करता है, वो इसीलिए पैदा करता है कि वहाँ उसकी ज़रूरत है। क्यों? गॉड इज़ अ डिसाइडर, हम लोग डिसाइडर है नहीं। डिसाइड वो करता है हमारा डेस्टिनी, लेकिन हम लोग अपने को समझ लेते हैं कि हम लोग ही डिसाइड करने वाले हैं, और उसकी वजह से दुखी होते हैं। इसीलिए गॉड में विश्वास रखो, यही मेरा मैसेज है। तो अंकल, ये आप जो बिलीव करते हो इनके बारे में आपके क्या व्यूज़ है, मतलब कुछ बताइए ना। ये सत्य साई बाबा जो है वो पुट्टपर्ती में उनका जन्म हुआ, और मोस्टली वो भारत छोड़ करके कहाँ गए नहीं। एक ही बार वो अफ्रीका गए थे, और इनके फॉलोअर पूरे वर्ल्ड में हैं। आश्चर्य की बात है कि जो जाता नहीं है कहाँ, उसके बाद फिर भी इनके फॉलोअर वहाँ बने, इनकी इतनी। और बड़े बहुत से पॉलिटिशियंस भी आपने देखा हो, इनके मिनिस्टर्स लोग सब फॉलोअर हैं। और ये वही धर्म का और सर्वधर्म का ही सिखाते हैं। उनका जो एम्बलम है ना, वो पीछे वही है, सर्वधर्म। उसमें क्रिश्चियंस है, हिंदू है, बौद्ध है, जोरिस्तान है, सभी के बारे में वो बोलते हैं, और एक ही बात बोलते हैं, प्रेम प्रेम प्रेम। लव इज़ अ गॉड, लव इज़ अ फॉर्म ऑफ गॉड। Okay, sir. So, thank you so much for sharing your story with us. I'm very grateful. ओके, थैंक यू। Okay, sir. अभी आप सर बताइए।
ये जो है ना, ये तस्वीर मेरे माता जी, पिताजी और मेरे चाचा जी है। हाँ 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 और ये मेरी लड़की जो अरुबा में रहती है और उनके मिस्टर हैं। हाँ 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 और ये तो पूरे वर्ल्ड पर राज करने वाले गणपति। अच्छा और ये हमारा फैमिली फोटो है। हाँ हाँ इसमें मेरी 4 लड़कियां हैं, 4 जवाइयां हैं हाँ और उनके बच्चे भी हैं। ये कब लिया था सर फोटो आपने, आप लोगों ने? शायद 4 साल पहले। हाँ हाँ हाँ। तो आपकी शादी को अभी कितने साल हो गए सर? मेरे शादी को 52 ईयर्स हुए। 52 ईयर्स। हाँ हाँ अच्छा। और आप इनको फॉलो ये करते इनको हैं? फॉलो करते हैं। ये हमारे हम लोग भगवान श्री सत्य साईं बाबा बोलते हैं। हाँ 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 नहीं चल तो मिनट तो रखो तो हवा लगी नहीं मतलब गर्म। चलिए अंकल। और ये हमारा लॉबी है हाँ और ये बाथरूम है इधर भी। हाँ 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 अब भले देख सकते हैं अंदर कैसा है बना हुआ। और ये हमारा किचन। अच्छा। तो अब अभी अपने वाइफ के साथ रहते हो? हाँ बस अकेले घूम रहे। हाँ अच्छा मैं चलो। हाँ तो ये हमारा एक लिविंग रूम है। हाँ अच्छा ये लिविंग रूम है। वो हॉल में भी टीवी रखा है, इसमें भी रखा है। सुस्त हो गए तो इधर देखते हैं। हाँ 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 और ये स्मार्ट टीवी है, उसकी वजह से इसमें सब हाँ मैं देख हाँ सकता हाँ हूँ। हाँ। यूट्यूब भी, नेटफ्लिक्स भी सब। ये किसकी फोटो है अंकल? ये कौन सी वाली? ये वाली? ये मेरा नातू जो भी न्यूयॉर्क में रहता है। हाँ हाँ अच्छा और ये अच्छा। इसी 11 तारीख को आने वाला है। हाँ हाँ 11 तारीख को आएगा और 17 को उसका एंगेजमेंट है। इतना बड़ा हो गया? हाँ इतना बड़ा अच्छा है। यही नातू जो अमेरिका में भूल गया हाँ था। हाँ 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 रो रहा है। हाँ अच्छा ये। अच्छा अच्छा और ये हमारा पूजा पूजा का रूम है। हम लोग बैठ करके ओह। यहाँ। अच्छा हम्म ये हमारे सत्य साईं बाबा भी हैं। ये हमारा झूलेलाल। हाँ 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 ये दत्तात्रेय भगवान जहाँ मैं हर साल जाता हूँ गाणगापुर। हम्म अच्छा तो अंकल आप लोग यहाँ कब से रह रहे हो? इसी इस घर में? इस घर में 30 ईयर्स हो गए। 30 अच्छा और यहाँ भी एक बाथरूम है, वो भी बहुत बढ़िया है, बड़ा है। हाँ हाँ इसमें बच्चे आकर के नहाते हैं। हाँ ये बॉडी शावर वावर सब देते हाँ हैं। हाँ 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 वो उससे भी बड़ा है बाथरूम। अच्छा और ये हमारा लैपटॉप है और ये प्रिंटर है। हाँ। मेरे को आदत थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक से शौक का। ये सब उसका सामान है। और ये जो है ना पैब्लो बोल रहा हूँ मैं, हाँ हाँ जो रह रहा है वहाँ, ये उसके सब बैग्स हैं। उसके सामान है। अच्छा वो ये इस रूम में वो रहता हाँ, है? इस रूम में वो रहता हाँ, है। इसको यही रूम है। वो पढ़ता भी है। और ये पढ़ाई भी किया है उसने। हाँ 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 इसमें उसके सर्टिफिकेट भी है। अच्छा तो ये रोटरी क्लब से यहाँ हाँ, पे कल्चरल एक्सचेंज के लिए आया है। कल्चर एक्सचेंज के लिए। तो आप लोगों को कैसा लगता है उसके साथ? खा लेता है वो आप लोग जो खाना खाते हो हाँ, वगैरह? ये उसने सर्टिफिकेट अक्वायर किए हैं, देखिए। हम्म। अच्छा अच्छा ओह तो ये मेक्सिको से है? हाँ ऐसे आप मैक्सिको हिस्ट्री देखेंगे ना तो अमेरिका बहुत मैक्सिको हेट करता है, हाँ 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 क्योंकि मैक्सिको से ही आदमी लोग अपना अमेरिका में घुसते हैं। बराबर बराबर। सर कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से, अच्छे झाड़।
सर ये लोकेलिटी कैसी लगती है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। मेरी मिसेस तो बहुत खुश हो गई। वो लोग जब इधर पहले बार लिए थे तो मेरी मिसेस एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि मैं शिफ्ट हो जाऊंगा उधर से 4 नंबर से। लेकिन जब यहाँ रहने लगी तो बहुत ही आनंद हुआ। मेरे को ऐसा लगता है कि उसका वजन ही बढ़ गया जैसे इधर आने के बाद। तो पहले 4 नंबर में रहते थे। हाँ। फिर और एक बार जॉइंट फैमिली, मेरे पिताजी, माताजी, बहनें, भाई सब वहाँ रहते। तो मैंने ऐसे सोचा था कि जब तक मेरे सभी भाई बहनों का शादी नहीं हो जाएगा तब तक मैं वो घर नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो पिताजी अकेले हो जाएंगे। और शादी का जो खर्चा है वो उठाना बहुत मुश्किल रहता है। तो मैं वहीं रहा। जब हो गए सबकी शादी उसके बाद फिर अभी आपके माता पिता? वो तो नहीं है अभी। अभी भाई भी अलग जगह में रहता है। हर एक को अपना अपना मकान है, अपने अपने बच्चे हैं। बराबर। काफ़ी काफ़ी अच्छा है अंकल ये पूरा।